Hi, good morning, my dear student. Today we will start class 8 SST. In SST, we were reading chapter 6 in civics, understanding our criminal justice system. In this chapter, we have read about a story Mrs. Sinde, Santi Abraham, and Susil. What happened with Santi Abraham? Santi Abraham was the maid. She was working in the house of Sinde family. Once a day, Sinde family ready to join the wedding party, but suddenly he had seen the condition had changed. Mrs. Sinde, crying, having seen that their necklace was not present in their drawer, it fell to Mrs. Sinde that their necklace theft by their maid Santi Abraham. Santi Abraham, even she was innocent, but Mr. Sinde, when they checked the box of the Santi Abraham, he was found 10,000 rupees, and he assumed that कि शांति अब्राहम ने उनके पैसे चुरा लिए. उन्होंने पुलिस को कॉल की. पुलिस ने शांति अब्राहम को अरेस्ट किया और फिर पूछताछ की. अपनी बहन को छुड़ाने के लिए उसका शांति अब्राहम का भाई सुशील थाने पहुंचा. पुलिस ने सुशील को भी अरेस्ट की. उसको 2 दिन तक जेल में बंद रखा और फिर उसे ये कह के छोड़ दिया कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से बेल लाइए, फिर हम आपकी बहन शांति अब्राहम को छोड़ेंगे. इवन शांति अब्राहम वाज इनोसेंट. उसने चोरी नहीं की थी, फिर भी वो जेल में बंद थी. 1 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया. कोर्ट में उसने जज से अपील की, आई एम नॉट कैपेबल, आई हैव नो मनी टू हायर अ लायर, सो दैट्स वाई प्लीज प्रोवाइड मी दिस फैसिलिटीज. जज appointed a defense lawyer, says Kamla Rai, and fair trial was running in court, and that's result Mrs. Kamla Rai ने बड़ी चतुराई के साथ केस हैंडल किया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि शांति अब्राहम ने उसके नेकलेस नहीं चुराए थे, क्योंकि जल्दी ही इंस्पेक्टर राव ने एक गैंग को पकड़ा जो मिसेस सिंधे की कॉलोनी में लोगों के घर में घुस के चोरियां करते थे. ये बच्चों का गैंग था जिसमें मिसेस सिंधे के लड़के के दोस्त भी सम्मिलित थे. पूरे केस ही बदल गई. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. अब वी आर गोइंग टू रीड दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? One important function of the police is to investigate any complaints about the commission of crime, and investigation include recording statements of the witness and collecting different kind of evidence. On this basis of the investigation, that police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. As start to beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. It means पुलिस के काम क्या है? पुलिस को जब किसी कंप्लेंट्स के द्वारा कोई कंप्लेंट मिलती है, पुलिस उस कंप्लेंट की जांच करती है. पुलिस उसके अगेंस्ट
अपनी जांच में एविडेंस जुटाती है और एविडेंस कलेक्ट करने के पश्चात वो उस आरोपी को दोषी अगर मानती है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके उसे कोर्ट के सामने पेश करती है। जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि पुलिस ऐसा लगता है कि वही सबको दंड देती है, सबके किसने चोरी की किसने चोरी नहीं की इसका निर्धारण भी पुलिस करती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। उसका काम सिर्फ आरोपी को पकड़ना और फिर उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देना। दैट इज हिज वर्क। यू रीड इन यूनिट 2 above the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This included the police. Therefore, the police investigation law have to be conducted accordance with the law and with the full respect for human rights. We have discussed about the fundamental rights. Our constitution given provision that everyone equal before law. Everyone has self-respect. Everyone should pay respect each other, and on the basis of that, police investigations always have to be conducted in accordance with the law and with the full respect for human rights. The Supreme Court has laid down the guidelines that police must follow at the time of arrest, detention and interrogations. The police are not allowed to torture, beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any from the punishment on the person even for petty offense. पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में उसके साथ उसको शारीरिक प्रताड़ना नहीं दे सकती, उसे उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती और अपने प्रॉपर रूल के थ्रू वो उन्हें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, जज के सामने ले जाएगी। आर्टिकल 22, आई हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 22 and article 39A. That is the provision which is given in our constitution that article 22, the constitution and criminal law guarantee to ever arrested person the following fundamental rights: right to be informed, the time of arrest, offense. कुछ नियम है, यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो टाइम, समय, प्लेस बतानी पड़ेगी, पुलिस को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, अपना पद बताना पड़ेगा, अपने किस पोस्ट पे ये दिखानी पड़ेगी। पुलिस किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती जो कन्फेशन कराते समय भी पुलिस उसे कस्टडी में उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती है। अ बॉय अंडर 15 ईयर एंड एज ऑफ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड इन द कोर्ट। कोर्ट में उसे बुलाया नहीं जा सकता। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को और महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता, पुलिस नहीं बुला सकती, कोर्ट में उसे ले जा सकती है, कोर्ट उसे बुलाया जा सकता है कोर्ट में, बट थाने, पुलिस स्टेशन पे 15 साल से कम उम्र के बच्चे और महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता अगर बहुत केस हो। So that is the role of police. I have already discussed this point all in your previous video. Today we will discuss the role of prosecutors, public prosecutors. What is the role of public prosecutors? Today we will discuss. We have already discussed about that. What is the meaning of FIR? What is the role of public prosecutors? A criminal offence is regarded as the public wrong. What is the meant by this is that it considered to have been committed not only against the affected victims but against society as whole. Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called the State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hembraham and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembraham.
In court, it is the public prosecutor who represented the interests of the state. The role of the prosecutor being once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. She has no role of play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecutions on behalf of the state. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable that court to be decided the case. Role of public prosecutors. What is the role of public prosecutors? Author want to inform you that public prosecutor, that the person who offends that condition which is against the state. अगर किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, जब किसी आपराधिक उल्लंघन को, जब किसी अपराध के उल्लंघन को जनता के विरुद्ध, जनता के अगेंस्ट माना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। हमने पिछले अध्याय में वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर द स्टोरी ऑफ सुधा की हमने दहेज वाली स्टोरी पढ़ी। हमने वहाँ देखा कि सुधा के पति लक्ष्मण कुमार, उनकी मदर इन लॉ और सुधा के ब्रदर इन लॉ, तीनों के ऊपर केस हुआ। केस में डॉरी के आधार पे केस की गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मार डाला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों को फांसी की सज़ा दी। बाद में लोग हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया, लेकिन फिर ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। जनता में अवेयरनेस आई, लोग जुलूस निकाले, महिलाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और डिसीजन दिया। इस डिसीजन में उसके ब्रदर इन लॉ को छोड़ के उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो ये स्टोरी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। ये स्टोरी में ये दिखाता है कि अगर दहेज प्रथा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक न लगाती या उन्हें दंडित नहीं करती, तो निश्चित रूप से समाज का अहित होता, समाज में लोगों में गलत मैसेज जाता। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि केवल पीड़ित को ही नहीं नुकसान पहुंचता है, बल्कि इस घटना से पूरे समाज के प्रति अपराध माना जाता है, क्राइम माना जाता है। अब बात कहते हैं कि ठीक ऐसे ही शांति वाले मुकदमे में श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेब्राम के बजाय राज्य बनाम शांति हेब्राम के नाम से जाना जा सकता है। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एम्बेसडर लक्ष्मण कुमार एंड अदर सिमिलरली द एबव कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम। मतलब जब इसमें राज्य की है। अब बात आती है कोर्ट की। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या करते हैं? हु रिप्रेजेंटेड द interest of the state. The role of the prosecutors being once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. Public prosecutors का जो डिटेल्स होती है उन बातों पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सरकारी वकील, इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। वह राज्य की ओर से राज्य का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। अगर पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू हो जाता है। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस जांच में राज्य की ओर से अपना पक्ष रखता है, राज्य का पक्ष रखता है।
न्यायालय के जो ऑफिशियल्स होते हैं, पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अगर इस बात को हम इजी लैंग्वेज में समझें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस किसी भी विक्टिम को कोर्ट में पेश करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस के दस्तावेजों के आधार पर, चार्जशीट के आधार पर राज्य की तरफ से स्टेट का पक्ष न्यायालय में रखती है और निष्पक्ष भाव से। अब यहाँ पे निष्पक्ष इम्पार्शियली क्या है? द प्रेजेंट दैट फुल एंड मटेरियल फैक्ट विटनेस एंड द एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। कोर्ट इस बात को डिसाइड करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? आई मीन टू से दैट हियर we are going to discuss about the judge, we are going to discuss about the role of the court। कोर्ट का क्या, कोर्ट कैसे इसकी बात को सुनता है, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। द जज इज लाइक एन अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल impartially and open court। The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense। The judge decided whether the accused person guilty or innocent on the basis of the evidence presented in accordance with the law। If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence। He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribes। जज की वही हैसियत है। जज इज लाइक एम्पायर इन ए गेम। जिस तरह से खेल में एक एम्पायर होता है, उसी तरीके से जज भी इस क्रिमिनल जस्टिस में अपना पार्ट प्ले करता है। जज हमेशा निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे की संचालन करते हैं। द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशंस एंड द डिफेंस। द जज डिसाइडेड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। जज ही ये निर्णय करता है कि जो व्यक्ति, जो आरोपी है, जो वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वो वास्तव में दोषी है या नहीं। इसका निर्धारण, इसका निर्णय जज के द्वारा ही किया जाता है। इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड, देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। तो कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द लॉ, दोषी व्यक्ति को वो जेल भेज सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं, या उसके साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं, फाइन और जेल दोनों दे सकते हैं। इट इज़ डिपेंडेबल ऑन द प्रिस्क्राइब। ये चीज़ें उस केस पे, उसके द्वारा किए गए कृत्य पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होती है? फेयर ट्रायल इट मीन्स निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष सुनवाई। लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन what might have happened if the judge decide to try Shanti's case very difficultly. What if the court did not give a copy of the charge sheet and statement of the witness of Shanti? What is he held the trial in the secret location? Neither Shanti nor Sushil were present. What if he did not give Shanti's lawyer, Advocate Roy, enough time to question that witness of the prosecution, such as Mrs. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? If this had happened, then it would be case of unfair trial. This is because for a trial to be fair, several differences procedure have to be observed.
Article 21 of the Constitution that guarantee the right of the life state that a person's life or liberty can be taken away only by following the reasonable and just legal procedure. थोड़ी देर के लिए हम फेयर ट्रायल के बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि अगर जज महोदय शांति के मुकदमे में किसी तरह संचालित करते हैं तो क्या हो सकता था। अगर जज शांति के मुकदमे को किसी और तरह से संचालित करते तो क्या होता। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र, चार्जशीट और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती, कॉपी ऑफ द चार्जशीट नहीं दी होती तो क्या होता। और अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां पर शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। एक बंद कमरे में, एक सीक्रेट रूम में जहां शांति और सुशील दोनों नहीं जाते, जज कहीं वायज हो जाता, जज कोर्ट चार्जशीट की कॉपी, पुलिस चार्जशीट की कॉपी शांति और को नहीं देती। और अगर न्यायाधीश ने शांति के जो डिफेंस लॉयर थे, शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरा करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेती कि शांति दोषी है तो क्या होता। और अगर इस तरह का कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए, निष्पक्ष फेयर ट्रायल के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। According to Constitution, Article 21, it is clear mention that the Constitution guaranteed the right to life. State that a person's life or liberty can be taken away only by following reasonable and just legal procedure. आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार, मनुष्य को उसके जीवन के अधिकार का आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है कि आप जीवित रहेंगे, आपके जीवन पे कोई भी संकट नहीं आने दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता, लिबर्टी को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। अगर बहुत जरूरी हो तभी उनसे अधिकार ले सकते हैं। But now that time it is clear cut instruction of Supreme Court that no one violate Article 21 in any case, in any condition. That is the clear cut instruction of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ डिसीजन है कि किसी को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आइए हम पूरी जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने पिक देखी, पैराग्राफ देखा, जो हमने लेट अस नाउ रिटर्न शांति's केस डिस्क्राइब इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द essential element of the fair trial. Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidences that the prosecution presented against her. Shanti was charged with the offense of theft that was defined as a crime in the law. The trial was held in an open court in public view. Her brother Sushil could attend the court hearing. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution's witness. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense. Firstly, Shanti was given a copy. अब देखते हैं कि क्या है। ऊपर हमने जो क्वेश्चन अराइज किए, ऑथर ने जो क्वेश्चन अराइज किया कि अगर जज ऐसा करता, अगर जज पार्शियल नहीं रहता, अगर जज किसी बंद कमरे में सुनवाई करता जहाँ पे शांति नहीं पहुँच पाती, अगर कोर्ट ने उसे डिफेंस लायर नहीं दिया होता तो क्या होता।
उसी के यहाँ पे आंसर दिया आथर ने। कहता है पहली बात, शांति को आरोप पत्र चार्जशीट उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई जो अभियोजन पक्ष, इट मीन्स प्रोसिक्यूशंस प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर, प्रोसिक्यूशंस ने जो उसके खिलाफ आरोप लगाए थे उसकी चार्जशीट की एक कॉपी शांति को दी गई। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की छूट दी गई, मौका दिया गया और अधिवक्ता राय ने शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि फेयर ट्रायल के थ्रू ही निर्णय हो रहे थे। कोर्ट ने सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराई शांति को। इवन शांति वाज वेरी पुअर, शी वाज नॉट कैपेबल टू हायर ए लॉयर इवन इफ कोर्ट प्रोवाइड हर डिफेंस लॉयर। अब पुलिस शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए उसका मुकदमा चलाया। अब जो प्रोसिक्यूशंस था, प्रोसिक्यूशन पक्ष को निर्णायक रूप में ये सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर सका। इट मीन्स इन द इजी लैंग्वेज, इफ आई वांट टू टेल यू दैट कि मिसेस सिंधे ये प्रूफ नहीं कर पाई कोर्ट में कि शांति ने चोरी की, और डिफेंस लॉयर ने क्रॉस एग्जामिन करके ये प्रूफ कर दिया कि शांति ने चोरी नहीं की। एक प्रोसेस के थ्रू, और फिर कोर्ट ने फाइनली डिसीजन लिया कि शांति ने चोरी नहीं किया है। शांति वॉज नॉट थेफ्ट। इस मुकदमे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जज ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, द बेसिस ऑफ एविडेंस जज टेकन डिसीजन। दैट स्टेप इन देयर ऑर्डर, न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच चोर है। उसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, और चूंकि साक्ष्यों से ये सिद्ध हो गया, एविडेंस से ये प्रूफ हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, कुछ यंग जो लड़के थे उन्होंने चोरी की थी, इसलिए शांति को न्याय मिला। इसी को निष्पक्ष सुनवाई कहते हैं। यही निष्पक्ष सुनवाई के आधार पे ही शांति को उसको कोर्ट से मुक्त किया गया, बाइज्जत उसे बरी की, सम्मान के साथ उसे फ्री कर दिया गया। Although the public felt the case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecutions to prove beyond the reasonable doubt that Shanti was guilty. In the case, the prosecutions failed to do so. It is significant that judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was a poor the maid servant. Instead, the judge reminded the impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. In the Shanti's case, justice was finally done to her because of she was given a fair trial. Fair trial के थ्रू ही शांति को बाइज्जत मुक्त कर दिया गया। The Constitution, the law, both state that all of the persons that we have discussed in the chapter should carry out their role in the proper manner. What this means is the way all need to work to ensure that every citizen, the irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a fair trial when accused. The rule of law which say that everyone is equal before the law would not make much more sense if every citizens were not guaranteed a fair trial by the Constitution.
साफ साफ क्या है, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमने देखा कि जिन लोगों का जिक्र संविधान और कानून दोनों में कहा गया है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से माननी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे की फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले लिया कि वो सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश जज ने एक इम्पार्शियल वे से एविडेंस के आधार पे और जो प्रूफ किया गया कोर्ट में उसके आधार पे शांति को बाइज्जत बरी कर दी और शांति को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दिया। नाउ इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इन दिस चैप्टर इट इज क्लियरली मेंशन दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट बोथ, all of the persons have discussed the chapter should carry out their roles in the proper manner. What this means is that they all need to work, ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets fair trial and accused. इस चैप्टर में ये भी बताया गया कि संविधान का जो कानून है वो सभी के लिए समान है। सभी की प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि सही ढंग से इसको फॉलो करें। कानून के समक्ष एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिहाफ ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, आइडियोलॉजी, फेथ। इसके आधार पे किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। द रूल ऑफ लॉ विच से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नियम है कॉन्स्टिट्यूशन का सभी लोग संविधान के समक्ष समान है। वुड नॉट मेक मच सेंस इफ every citizens were not guaranteed for trial by the constitution। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत में कोई खास मतलब नहीं रह जाता कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइज योर प्रॉब्लम। इफ योर फंडामेंटल राइट्स वायलेट anytime you can आप उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, क्रिमिनल जस्टिस कैसे होते हैं, कैसे दिए जाते हैं। शांति अब्राहम के केस में हमने देखा कि कैसे न्यायाधीश ने लिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन थे, पब्लिक डिफेंस लॉयर ने किस तरीके से बचाव किया शांति अब्राहम का। मिसेस शिंदे जो धनी परिवार की थी, उन्होंने किस तरीके से आरोप लगा करके फोर्सली ये प्रूव करने का प्रयास किया कि उसने चोरी की, लेकिन प्रॉपर मैनर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट इज प्रूव्ड इन कोर्ट दैट शांति अब्राहम इज नॉट थीफ और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। सो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके ग्लोसरी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स दिए हैं, टेक्निकल वर्ड्स, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू नोट ऑन योर कॉपी। आपने कॉपी में इसको लिखेंगे और फिर उन्हें याद करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस इन माई ऑनलाइन क्लास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।